मार्केट में एक चीज़ जो हमको अच्छे से समझना है वो है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का जो सबसे बेस्ट टूल है वो है बॉलिंजर बैंड्स, और मैंने बॉलिंजर बैंड्स पे बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो मैंने एक काम किया कि सारे बॉलिंजर बैंड्स के वीडियोस को एक साथ जोड़ दिया है, और ये पूरा बॉलिंजर बैंड का कोर्स बन जाएगा आपके लिए, और ये आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या क्या आपने सीखा। बॉलिंजर बैंड्स के बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे इनसाइड आउटसाइड, 3 ड्राइव्स और स्क्वीज ब्रेकआउट, ऑल दैट कैन बी लर्न फ्रॉम बॉलिंजर बैंड्स। और बॉलिंजर बैंड्स में वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी होता है। सो चेक आउट दिस बॉलिंजर बैंड कोर्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डिड यू लर्न। Today's topic is Bollinger Bands. Now, this is again one of my favorite tools, and it's not regular oscillator or indicator. It's a volatility band, and it was developed by John Bollinger. I like this very much because it is very easy and simple, and also it is especially very effective for short-term trading. And I know you guys love short-term trading. If you like that, put that in the comment. Short-term trading like day trading or swing trading or intraday trading, then put that in the comment and I will teach you something very important which will help you to amp up your short-term trading. So let's start with Bollinger Bands. So it started, it's on the price. If you see RSI and ADX are below the price as a separate thing, but Bollinger Band is on the price, like it's put on the price. Then we have like 3 bands: upper band, middle band and lower band. So there are upper band is middle band plus 2 standard deviation, and lower band is middle band minus 2 standard. Now what is the standard deviation? Now I know you have surely done that in school and college, but I'll just give you a brief about it in a minute. And 20 moving average. The middle band is just 20 simple moving average. And I'm sure you have seen the video on moving average, the episode on 20 moving average. And it's my favorite. It's very simple and very, very powerful. So 20 moving average you have to put an upper and a lower band by just clicking on Bollinger Bands in your software or website. And again, it's a default setting. We're not changing any setting. 20 and 2 are the standard settings. So why 20 and 2? Let's check that out. And it's developed by John Bollinger, and he's written a book also called Bollinger on Bollinger Bands, and I'm surely recommend that book to read so that you learn more about Bollinger Bands. Right, so let's talk about this. This is how a chart looks like with Bollinger Bands. Upper band, middle band, lower band. You can see that, right? It gives you a context to the market. Let's say without the bands, what will you feel? There is nothing like, if I say, let's say a Nifty is 15,000. How will you gauge whether it's bullish or bearish? Only when you know that yesterday it was 14,500, then you know, oh, today it went up. Or yesterday it was 15,500, then you know today it went down. Otherwise, 15,000 in itself does not have any meaning. Same way, if the chart looks like this, it doesn't have any meaning till you give a context. Now, you have 3 bands. So if it's below the center band, it's a downtrend. It's above the center band, it's an uptrend. If it goes out of the band, it's highly volatile. It's within the band, it's low volatility. So it gives you a context about it. So that's very important. Now this is standard deviation. You just Google up, I picked up from Google, it says what is standard deviation. You'll see this diagram. This is called the bell shape or the bell curve, right? Everything in the world is divided in this standard deviation mostly, right? And I will give you the most common and cliche example which everyone gives, and that makes you understand the concept very well. So what is standard deviation? It's like, let's say if I measure the height of 1,000 people and say what is the average height of people, where is the maximum people? So maximum people will be in one standard deviation. Let's say it's 34 plus 34, which is 68%. Let's say the height is 5 feet and 5.5. Yes, the rumors are true. 1 event and 3 freedom. 15th of August, we are going to talk about money freedom, time freedom, and freedom from stress. How do you do that? Learn AI the right way to buy back your time. Learn the systematic approach to trading to get money freedom. And the last and the most important, how to get mind freedom by using the right money technique. So click on the link and join this freedom event right now. 5 and 5.5 is 68%. So if I increase the range, let's say 4.75 and 5.75, then 2 standard deviation. So 13 plus 13, 26 plus 68. So 95% of the people will be between 44.75 and 5.75. And the last, there are some exceptional cases who are short or very tall, like 4.5 to 6 feet. That will come into 99%. So if you take 3 standard deviations. And very, very exceptional, like one in a million, you'll see that kind of dwarf, or the very tall people who have some record, like a Guinness Book record, like 6.7 or 7 feet.
right? So most of the people will be coming into 95%. It's the same for height, weight, income, cars people use, everything. You use the bell curve shape. Same thing comes to the market. And in market, we are going to use standard deviation too. That means 95% of the market will be between the bands. But when it goes outside the band, that is when the markets are volatile. And how important that signal is for us to make money, right? For short-term trading. So let me show you this one. I have put all three standard deviations, 1, 2, and 3. It looks like a bit clumsy here, but just to give you an example that when you use one standard deviation, the price goes out of the band again and again, too often. And if you use 3 standard deviation, the price does not touch the band maybe once in a while. So 1 will give you many signals. The 3 will give you very rare signals. That's why we use this 2 standard deviation, and I think that works like magic. Although I don't need to explain this because the person who invented says 2 standard deviation. That means he must have done enough work on that. So why put our brains? Just use it. Just read the book and use it. 2 standard deviations. Now, volatility divergence. Now, this is a new word. You might have seen RSI divergence or momentum divergence. Now, Bollinger Band has at least, like I would say, 5 to 7 uses, 5 to 7 different ways to use Bollinger Bands for your trading. And out of that, one which is very simple and powerful, which I'll tell you right now, which will help you to gauge whether the markets are highly volatile or less volatile. So let's talk about volatility divergence. Now, if you understand normal divergence is that there's something which is going in sync. Let's say price is going up, RSI is going up. It's a normal market. Then price goes up and RSI comes down. That means there's a divergence. One is going down, one is going up. In the same way, let's talk about volatility divergence. This is very, very powerful. Look at this one. You just see a double bottom. Double bottom, I hope you know what is double bottom. Like when 2 bottoms or 2 price bottoms are same, like a W pattern, it's called double bottom. Now in this, what is the main thing? One bottom, which is going outside the band, outside, and the second bottom again going up and then making inside the band. That means first bottom is made with high volatility. The second bottom is made with low volatility. When will the volatility go down or when will the momentum go down? What is the concept of divergence? Before market changes the direction, it will reduce the speed, it will reduce the volatility. Mark down. This is a 10x nugget for you. Before market takes a U-turn from a downtrend to an uptrend, it will first reduce the speed and it will first reduce the volatility. Let me give you a simple example. Let's say you are going at a speed of 100 and now you want to take a U-turn. Will you take a U-turn at 100 speed? No. First you will slow down the speed and then take a U-turn. Same way, markets like going at 100 speed down. Now suddenly it wants to go up. Will it take a V-shape? It happens sometime. But if you see that it will make a new bottom which has low volatility, so reducing the speed and then or reducing the volatility in this case and then goes up. So this is called as outside inside bottoms or double bottoms, outside inside. One is out, one is in. That gives you a chance to buy here for this particular rally. So let me show you one more example, like a perfect W pattern. One out, goes up, then again comes down, but this time it makes the same bottom, but this is outside, this is inside. That means there is a volatility divergence and I can buy here with a candle confirmation. Of course, we get into entries and exit in a separate video maybe, but you know the concept, broad concept where you need to enter, right? And then gives you another trade in this one. Like double bottom, it will have the same on the top also, like a double top also. I'll show you examples of that. Like here, you can see this, goes outside the band, comes down, makes the same high. Now, I'm sure you know that double bottom and double top does not mean that exactly it's going to be same. It's market, right? It's subjective and it's a probability study, right? So if you see broadly, one top outside, second top inside, outside inside, and you get a bearish candle and then you get a downtrend. So that's M pattern, outside inside, volatility divergence. One more, outside inside. How different it is. Suddenly if you have seen this for the first time, I think it's a eureka moment for you. And once you go immediately, whatever episodes you are seeing or watching this on this channel, I strongly suggest that as soon as you learn the concept, go and practice it. Look at 100 charts a day if you want to really master this subject for the next 1 or 2 years, and you'll see the difference in your analysis and trading, right? So this is outside, inside, Bollinger Band. And let's take one more example, outside, then goes down inside.
right? So this main concept of Bollinger Band, there are 3-4 more ways to use Bollinger Bands, which is called squeeze and walking on the bands, tagging the bands. There are 3 drives to the band, and this are maybe we can cover in some other episode, but this we covered the basics of Bollinger Band. It's a volatility band. And the second one, we covered the volatility divergence, which is outside and inside, double bottom or double top. So I hope you like this video and love this video, and make sure you comment in the comment section. What did you learn about it? Did it help you? And would you like to see more such videos? Do you like Bollinger Band or not? Will you start using Bollinger Band or not? What other tools you want to see in this kind of series which I'm doing for you on this channel? Good luck and good trading. आज हम फिर से बात करेंगे RSI और उसके साथ हमारा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन टूल है ना, कॉम्बिनेशन टूल RSI के साथ है बॉलिंजर बैंड्स। तो बॉलिंजर बैंड्स वॉलेटिलिटी चेक करता है, RSI मोमेंटम चेक करता है, दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है। और आज हम सीखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो अभी दोनों के कॉम्बो पे एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं। चलिए देखते हैं RSI और बॉलिंजर बैंड का डेडली कॉम्बिनेशन कैसे होता है। राइट, वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, और उसको दोनों को कंबाइन करके कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द स्टॉक्स, लाइक लेट्स से वी स्टार्ट विथ टाटा केमिकल। टाटा केमिकल आपको दिख रहा है यहाँ पे चार्ट्स पे, और अगर मैं अपना सिंपल एनालिसिस यूज करूं जो मैंने बात की है, प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, टाइम और सेंटिमेंट, राइट, अगर इसको बराबर से देखे तो इसमें क्या हो रहा है। एक तो ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, देख रहे हैं आप, ये कंसोलिडेशन जोन था उसका 100 रुपए का, जो काफी मतलब ऑलमोस्ट 6-8 महीने से चल रहा था, उससे ज्यादा चल रहा था, और अभी ये हफ्ते में उसने ब्रेकआउट दिया। ये वीकली चार्ट है। अब आप देख रहे हो कि स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ है। बॉलिंजर बैंड मतलब बैंड के बाहर जा रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और ये 60 को क्रॉस कर रहा है, राइट, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब ये हफ्ता ट्यूसडे है, इसलिए वीकली वॉल्यूम भी इतना नहीं है, लास्ट वीक में काफी अच्छा वॉल्यूम था, तो ये ब्रेकआउट हमको लेके जाएगा। अब इसका सिंपल टारगेट कैसे होता है, बॉलिंजर बैंड प्लस RSI ब्रेकआउट, जितना रेक्टेंगल है उतना ही ऊपर, मतलब 100 रुपया ऊपर, इतना फर्स्ट टारगेट है। फिर दूसरा तीसरा भी आ सकता है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टॉक ऑन RSI बॉलिंजर बैंड कॉम्बो। स्क्वीज प्लस RSI 60 क्रॉस इज द बेस्ट कॉम्बो यू कैन यूज। नाउ लेट्स सी, और एक स्टॉक है, लेट्स गो टू एक्साइड। एक्साइड जो काफी दिन से चल रहा है, आज उसमें डेली चार्ट पे स्क्वीज ब्रेकआउट, 60 पे सपोर्ट, राइट, विच वाज एडवांस GFS, ग्रैंडफादर फादर सन, डेली पे सपोर्ट 60 और स्क्वीज ब्रेकआउट, और वॉल्यूम देखो कैसे जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। तो ये और एक ब्रेकआउट हो गया। तो RSI प्लस कॉम्बो, यहाँ पे जब लास्ट टाइम कॉम्बो ब्रेक हुआ था तो यहाँ से उसने इतना बड़ा ट्रेड दिया था, अभी फिर से ब्रेकआउट हुआ। तो ये ट्रेड क्या कर रहा है, बेसिकली आप देखो इसका पैटर्न क्या है, ये ऊपर जाता है, फिर ये कंसोलिडेट करता है, फिर ये ऊपर जाता है थोड़ा सा, और फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है। तो हर बार ब्रेकआउट पे एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड बन सकता है, और ऑफ कोर्स अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन करो तो ये अपने आप में पूरा एक बड़ा पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, 6 फिगर ट्रेड, 7 फिगर ट्रेड भी बन सकता है, राइट। सो यही सारे ट्रेड्स हमारे 10x और 10NV में होते हैं। अब दूसरा ट्रेड अगर मैं आपको दिखाऊं, टाटा पावर, यहाँ पे ब्रेकआउट, अगर आप इसको देखोगे वीकली चार्ट पे भी इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट, 60 क्रॉस, वीकली 60 क्रॉस, और यहाँ पे अभी वो जस्ट थोड़ा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, जो लास्ट 1.5-2 साल से उसने ब्रेक नहीं किया है। अब लास्ट हफ्ते में जो ब्रेकआउट हुआ था, जो हमारे सारे स्टूडेंट्स ने लिया, वो ट्रेड था, ऑफ कोर्स आपको भी पता ही होगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, वो है REC लिमिटेड, राइट। इफ यू सी दिस, अगर इसका वीकली ब्रेकआउट देखते हो तो इसका कब ब्रेकआउट भी हुआ था, आपने देखा था, हमने कब को इसको बहुत बार डिस्कस भी किया था बहुत टाइम पहले, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसी महीने में, मतलब यही महीने में, जुलाई के महीने में, इट वेंट फ्रॉम 166 टू 200, मतलब 166 टू 200, मतलब 20% बढ़ा ऑलमोस्ट। अब 20% बढ़ता है ना, तो मेरे को एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको ये देना है, दैट नाउ जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग है, जो मैं काफी दिनों से चिल्ला रहा हूं इतने सारे वीडियोस में। आपने मेरा मेगा मास्टरमाइंड भी देखा होगा, सैटरडे को रिलीज हुआ था, जो मैंने अपने पेड प्रोग्राम से निकाल के आपके यूट्यूब पे लगा दिया है। तो वहां पे क्लियर बुल ट्रेंड है, तो हमको चिल्लर वाला ट्रेड नहीं करना है, बड़े ट्रेड करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़े ट्रेड कैसे होते हैं, राइट। सो ये हमारे जो ट्रेड्स है,
जो हमने डिस्कस किए, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज प्लस RSI 60 ब्रेकआउट। अगर इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वीज ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे 60 क्रॉस हुआ। अब यहाँ पे देखोगे 140 से लेके 200 तक, राइट? सो दिस आर द काइंड ऑफ ब्रेकआउट ट्रेड्स यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। और पोजिशनल या स्विंग करो, इंट्राडे बंद कर दो, कुछ नहीं है, चिल्लर में कुछ नहीं मिलेगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा टैलेंट चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट कम है, स्किल कम है, लेकिन स्ट्रैटेजी सिंपल और एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर इफ आई टू सी डेली, यहाँ पे भी स्क्वीज ओपन होने की तैयारी है, IEX, ये अभी तक 60 क्रॉस नहीं हुआ, तो इसको कल परसों वेट करना पड़ेगा। आज जितने भी स्टॉक्स चले हैं, आप उसमें देखोगे स्क्वीज ब्रेकआउट, अतुल लिमिटेड 60 क्रॉस स्क्वीज ब्रेकआउट। अब जितना ज्यादा स्क्वीज होगा, जितना ज्यादा रेक्टेंगल होगा, कंसोलिडेशन होगा, उतना ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट होगा। सो वो आपको समझना है, राइट? यहाँ पे देखो बर्जर पेट, कंसोलिडेशन और स्क्वीज ब्रेकआउट 60 प्लस, RSI 60 क्रॉस होना चाहिए, बॉलिंजर बैंड के ऊपर बैंड पे टैग होना चाहिए, और वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। दैट्स सिंपल। प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, पांचों स्टेप को हमने कवर किया। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। Hey guys, this is विशाल। आपने मेरी फेमस स्ट्रैटेजी जो है RSI के बारे में आपको पता ही होगी कौन सी है, GFS, ग्रैंडफादर फादर सन। तो उसका कॉन्सेप्ट कैसा है कि एक हायर टाइम फ्रेम मंथली ग्रैंडफादर, फिर वीकली फादर, और सन डेली। मतलब हायर टाइम फ्रेम, मिडिल टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, ये 3 टाइम फ्रेम को लेके हम काम करते हैं। तो सिग्नल कहाँ जनरेट होता है? हायर टाइम फ्रेम पे। ट्रेंड कौन सा है? हायर टाइम फ्रेम पे। बाय कहाँ करना है? लोअर टाइम फ्रेम पे। तो एक हो गया ट्रेंड डिफाइनर और एक हो गया ट्रेड डिफाइनर। ध्यान में रखो, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड डिफाइनर, लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड डिफाइनर। एक आपको बताएगा कौन सी दिशा में जाना है और एक आपको बताएगा कहाँ खरीदना है या कहाँ बेचना है, राइट? अब उसी कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट करते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। उसको अगर बॉलिंजर बैंड पे यूज करें तो कैसा लगेगा? तो बॉलिंजर बैंड का फादर सन स्ट्रैटेजी करेंगे। ग्रैंडफादर फादर सन नहीं, खाली फादर सन, 2 टाइम फ्रेम्स। सो लेट्स गो देयर एंड लुक एट दिस एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइस। कोर कॉन्सेप्ट्स में तीनों चीज, प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, 3 चीज आपको समझनी है मार्केट में अगर आपको आगे बढ़ना है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, राइट? वॉलेटिलिटी में हम बात करेंगे ड्यूअल बैंड स्ट्रैटेजी। ड्यूअल बैंड मतलब क्या? 2 टाइम फ्रेम्स, राइट? अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। एक हायर होगा, वैसे हायर टाइम फ्रेम विच इज वीकली चार्ट फॉर एग्जाम्पल, और वो क्या कर रहा है कि ऊपर के बैंड को टच करके सेंटर बैंड पे आ रहा है। सेंटर मतलब बीच वाले बैंड पे। और उसी टाइम पे लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट लोअर बैंड पे होगा। तो जैसे, क्योंकि पहला वाला क्या है, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर है मतलब मार्केट ऊपर, मूविंग एवरेज के नीचे मतलब मार्केट डाउन। तो अब मूविंग एवरेज पे अगर सपोर्ट ले रहा है, इट्स लाइक वीकली चार्ट पे RSI 60 पे सपोर्ट है और डेली पे 40 सपोर्ट है। सिंपल, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। हायर टाइम फ्रेम 60 सपोर्ट, लोअर टाइम फ्रेम 40 सपोर्ट, हायर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज सपोर्ट, लोअर टाइम फ्रेम लोअर बैंड सपोर्ट। चलिए एग्जांपल से और समझ में आएगा। यहां पे अपने को सिग्नल मिलेगा, अगर सिग्नल कंफर्म होता है प्राइस एक्शन से तो मैं बाय करूंगा, तो मैं समझूंगा कि चलो ये मेरा बाय बनता है, राइट? सो दिस इज द एग्जैक्ट वे लुक्स लाइक। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। ना एग्जांपल्स में आप देख रहे हो कि ट्रेंड ऊपर है, राइट? और धीरे धीरे घिस के वो मूविंग एवरेज के पास आ रहा है और वहां पे वो हैमर बना रहा है। उसी टाइम पे लोअर टाइम फ्रेम डेली चार्ट देखोगे तो एकदम खराब दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो तो लोअर बैंड को भी तोड़ रहा है, बट उसका हायर टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है कि अभी मैं तो सेंटर बैंड पे हूं, राइट? इसीलिए मैं हमेशा बताता हूं कि एक चार्ट को देख के कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसका एक हायर टाइम फ्रेम देखना ही चाहिए। कोई भी चार्ट, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हो ना तो 15 मिनट का चार्ट चेक करो, अगर 15 मिनट में करते हो तो 1 घंटे का करो, 1 घंटे का करते हो तो डेली चेक करो, डेली करते हो तो वीकली, और वीकली करते हो तो मंथली, और शायद मंथली करो तो क्वार्टरली भी चेक कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे और एग्जाम्पल देखेंगे। देखो अब इसको मैं बड़ा करता हूँ। वीकली चार्ट में, ये वीकली चार्ट है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वीकली चार्ट एट द टॉप दिख रहा है। अब ये ट्रेंड ऊपर है, राइट? अब वो आया मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे, मतलब अभी भी ट्रेंड ऊपर है और वो एक ट्रेंड डिसाइडर है। उसी टाइम पे डेली चार्ट की हालत खराब है क्योंकि वो नीचे के बैंड पे जा रहा है, राइट? अब वहां पे मुझे सिग्नल चाहिए, कैंडल पैटर्न सिग्नल चाहिए। वहां पे अगर मैं आउटसाइड इनसाइड भी देखता हूँ, समझो यहाँ पे देखो वॉलेटिलिटी, ये मेरा बाय बनता है क्योंकि वहां पे तो वो सपोर्ट पे है ही, यहां से मुझे बाय बना और ये सीधा गया
ऊपर की तरफ. So this is how a dual band strategy works. This is one of the most powerful strategy. In fact, और एक बार देखोगे तो ये यहाँ पे फिर से मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया उसने और उसी टाइम पे उसने यहाँ पे लोअर बैंड पे स्पिनिंग टॉप और हैमर बनाया और कंफर्मेशन दिया. So this is the power of dual band which you can see. Now let's look at this twice. Once and twice, both the times it gave you a signal at moving average support. ये चार्ट ढूंढना आपको काम है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मूविंग एवरेज पे सपोर्ट और लोअर बैंड पे सपोर्ट. मूविंग एवरेज पे सपोर्ट, अब उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, देखो उसको तोड़ा है उसने, उसके नीचे जाने के बाद ग्रीन कैंडल बनाया. सो यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू वर्क अराउंड दैट. अब उसके पहले भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक मूविंग एवरेज सपोर्ट था, दैट वुड ऑल्सो हैव वर्कड वेल, राइट. सो दैट्स हाउ यू नीड टू सी सपोर्ट्स. ये भी मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे देखो ऑन द अदर साइड इट्स आउटसाइड एंड इनसाइड, राइट, लोअर टाइम फ्रेम पे. तो आपको समझ में आ गया कि ये मूविंग एवरेज से टर्न मारने वाला है. नाउ लुक एट दिस इज वेयर एग्जैक्टली इट कम्स टू पहला वाला. नाउ लेट्स सी सारे सिग्नल्स जो बॉलिंजर बैंड के ना सब इसमें है. स्क्वीज ब्रेकआउट एंड वॉक ऑफ द बैंड्स, राइट. फिर आया मूविंग एवरेज सपोर्ट, फिर आया इधर आउटसाइड और इनसाइड, डबल बॉटम बनाया उसने और फिर से उसने स्क्वीज ओपन किया ऊपर की तरफ और देन इट gave us a good uptrend, right. So this is where all the signals of Bollinger Band, कैसे volatility कम होती है, बढ़ती है, मगरमच्छ का मुंह खुलता है and then again you compress the spring and then it bounces back, then it makes a volatility divergence, मतलब एक बाहर एक अंदर, right. Let's look at one more. That's a perfect. अब नीचे देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है, हायर आउटसाइड इनसाइड, तो ये पहला हमारा बाय सिग्नल बन गया. अब वो ऊपर गया और फिर आया मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पे डिप, रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं. उस डिप पे वीकली चार्ट पे, डेली पे उसने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम लोअर बैंड्स को किया और वहाँ पे मुझे जो भी कैंडल कंफर्मेशन मिलेगा उससे मैं बाय करूंगा. अब उस लोअर टाइम फ्रेम में भी आउटसाइड इनसाइड था. कैन यू सी दैट? दैट वाज एन एग्जिट सिग्नल. If you are long on this outside inside, let's take this one. This was your long. Let's change the color of the pen. Yes. Now that was your long on the weekly chart with the stop loss of this. ठीक है, आपने वो long किया और उसके वीकली चार्ट के हिसाब से फिर वो ऊपर गया तो आपको यहाँ पे डेली चार्ट के हिसाब से सेल मिलेगा, दिस वन, एंड यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया या शॉर्ट भी कर दिया. फिर जब वो वापस लोअर बैंड पे आएगा, and that is when it comes to the center band of weekly chart, that could have been another trade, right. I went thoda sa advanced, it is like a 10x kind of a training, but make sure you pay attention what I'm teaching. थोड़ा सा और ध्यान दोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट. लुक एट दिस, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट और लोअर बैंड पे यहाँ पे सपोर्ट, डुअल बैंड स्ट्रैटेजी. अब यहाँ पे जो था एग्जाम्पल था वो डेली और आवरली का था. तो हमेशा, चलो आपको एक गोल्डन रूल सिखाता हूँ मैं आपको. जब भी कोई भी दो टाइम फ्रेम यूज करते हैं, डेली और वीकली में फर्क क्या होता है? डेली एक दिन का, वीकली मतलब 5 दिन का, सो 1:5 हो गया. वीकली और मंथली तो 4 वीक बन के एक मंथ बनता है तो 1:4 हो गया. डेली और आवरली तो एक 6 घंटे मिलके एक डेली बनता है तो 1:6 हो गया. तो 1:4, 5 and 6 इज बिटवीन दिस पीरियड्स. बट अगर मैं समझूं कि मैं डेली यूज करता हूं और सीधा वीकली यूज करता हूं तो कितना हो जाएगा? 6 घंटे इंटू 5 मतलब 1:30 हो जाएगा. वैसा नहीं करना है. सो हमेशा हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के बीच में 4 से 6 गुने का फर्क होना चाहिए. 4 to 6 टाइम्स बहुत ज़्यादा कर दिया. समझो कि आप कमोडिटी मार्केट करते हो तो वहाँ पे आवरली डेली नहीं चलेगा क्योंकि वो 16 घंटे चलता है. अगर 16 घंटे चलता है तो मैं 4 आवरली और डेली करूँगा, 10x nugget, right. So that was your long examples. Now let's look at the short examples. Short भी सेम ही रहेगा कि एक टाइम फ्रेम पे सेंटर बैंड पे रेजिस्टेंस है, दूसरे टाइम फ्रेम पे हायर बैंड पे रेजिस्टेंस है, एंड देन वी गेट अ सेल सिग्नल एंड देन इट गोज डाउन, राइट. सो दैट्स हाउ दिस होल थिंग वर्क्स. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑन योर स्क्रीन. ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये पहले से पता है क्योंकि सेंटर बैंड के नीचे है, राइट. फिर वो सेंटर बैंड को रेजिस्टेंस बनाने को आता है एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, और एक बार जब वो सेंटर बैंड पे आता है डेली चार्ट पे तो आवरली चार्ट पे वो अपर बैंड को टच करेगा जैसे यहाँ पे किया और उसने सेल सिग्नल दिया फॉर द फर्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन ऑल्सो एंड द नेक्स्ट वन ऑल्सो, राइट. लेट्स लुक एट विद दिस वन. दिस इज डेली एंड आवरली, सेंटर बैंड पे रेजिस्टेंस
and then higher band पे you got a sell signal. In fact, उसके बाद आपको outside inside मिला, and that could have been a better shot, right? Then we look at center band as resistance, and then higher band as our main signal. वहाँ पे spinning top, confirmation, all that we got as a sell signal, and then we had थोड़ा सा consolidation and then a strong downtrend we got in this one. Again, center band, and then we have this higher time frame पे, lower time frame पे, higher band पे we get a sell signal. So now this is weekly and daily. So वो पहले hourly daily था, अब weekly daily है. So you get a weekly resistance and a daily outside inside दिख रहा है, perfect. And you get a perfect sell signal. मतलब dual band strategy और volatility divergence दोनों एक साथ एक ही pattern एक ही chart में, right? Again, you can see that weekly resistance और higher band resistance. अब जैसे ये ग्रैंडफादर फादर सन है ना, फादर सन स्ट्रैटेजी जो कैश टैग किताब में भी छपी है, उसको आप यूज कर सकते हो. जैसे आरएसआई का एक हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम लिया, वैसे अभी हमने बॉलिंजर बैंड का हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम लिया, which is father and son, right? That's called dual band strategy. Look at the weekly chart resistance and the daily higher band and confirmation, right? So हमारा weekly chart है वो ट्रेंड डिफाइन करता है और डेली चार्ट हमको ट्रेड डिफाइन करके देता है, राइट? वीकली चार्ट हमेशा आपको डायरेक्शन, रास्ता, दिशा बताएगा कौन से दिशा में जाना है, और डेली चार्ट हमको बताएगा कि कहाँ एग्जीक्यूट करना है, कहाँ ट्रेड लेना है, राइट? अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करोगे दो टाइम फ्रेम से, फिर कोई भी टूल यूज करो तो आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे जाएगी. वीकली एट मूविंग एवरेज and daily at the higher band, and then a confirmation, right? Thank you so much. Good luck and good trading. How do you know whether there is volatility or not using Bollinger Bands? Which time frame to use, which candle to enter, which candle to exit, how much money to be expected, and how do you scan this trade? How do you put a automatic scanner? You need a good software, of course, which you know that, okay, the band walk is opening. All that is important. So I'm giving you the broad structure of the strategy right now. Now let's understand first the normal walk of bands. Now this is what you call a walk of bands, is when price starts walking on the band. See this? This is Bollinger Band, red band up, center and lower. So here, let me just give you, this is lower band, upper band, center band. Center band is nothing but 20 simple moving average. And let me tell you one secret right now. 20 moving average is the number one tool in technical analysis, which is so powerful, can't even imagine. And the whole money flow program, which is about short-term trading and day trading, revolves around 20 moving average. How to use 20 moving average in at least 5 different ways. And especially that magic band thing, which I mentioned, is the most powerful thing. So now let's talk about 20 moving average plus 2 standard deviation is upper band, minus 2 standard deviation is lower band. Now, if you don't know what is standard deviation, doesn't matter. You just need to know how to use it. So by default, if you put Bollinger Bands on the screen, you will get 2 plus and 2 minus standard deviation. That's the standard default setting of Bollinger Band. So don't worry about anything else. Now, how do I trade this? What is first? Let's understand the broader concept. Then we get into the exact entry and exact stop loss of it. So first we need to understand this is the walk. When the candle closes outside the band is called walk of the band. So it's walking. This is the first candle, second, third, fourth, and fifth, sixth, and seventh is inside. And then it comes inside and then goes up. This is not our concern. This is our concern. That's where we make money. So this is walking on the upper band. And similarly, you see on this side, it has started walking on the lower band. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And this 8th is inside. So 7 candles outside the band. Walk of the band. This is called walk of the band. Very, very simple and very, very easy. So let's now look at some more charts. Now this is 15-minute chart of Bank Nifty. And the same walk, same moving average, same band, upper band, lower band, center band. 1, 2, 3, 4, 5. And this in between is a 6.
it's closing in, and then again walk. So let's say if we don't take this part of it, we get 3 to 4 candles. Now 3 to 4 candle equals 2 to 300 points on Bank Nifty nowadays, right? And this one, walk of the band, can you see? It's very, very simple. So I'm going slow and steady. Then I'm going to go into the intraday chart of Bank Nifty today and show you what it did in last 2-3 days. This is Maruti. Let's walk 1, 2, 3, 4, 5. And then this is a gap down because the day changed. 1, 2, 3, 4, 5. And then finally it got inside the band. Let's say you short on the band walk, first candle. Okay. That is your first candle. And then you enter short, and it is as long as walking, you stay in the game. As long as walking, you stay in the trade. So it walks and it closes near this. That means it closes near the low of the day. And that means it's a best STBT trade. So next day, it continues to go down 1, 2, 3, 4, 5. And by morning 10:30, you make this big money in just 2 days. You started your trade at the end of the day, which is around 3 o'clock or 2:30. And then you ended the day next day, 10:30. So this is typically I was doing in a raw form when I was 18, 19-year-old, without knowing all this Bollinger Band stuff. Basically, what you're looking at, the stock which gets volatile at the end of the session, last 1 hour or last half an hour, that tends to be volatile in the next opening session in the same direction. And that becomes the best STBT BTST trade. And that we can detect with the help of Bollinger Band walk. I hope this was the aha moment for today if you realize this. You understand what I just said? I will repeat that statement, that the stock which gets volatile in the last 45 minutes to half an hour, which we'll know only when we use Bollinger Bands on 5-minute or 15-minute chart, that will start walking on the band. And then if it closes right at the top or right at the bottom, as in this case it is at the bottom, then you carry forward that trade to the next day as a STBT or a BTST trade. And next day, if it opens against you, straight away square up at 9:15, 9:17. But it opens in your direction, like in this case, then you hold on as long as it walks on the band, 3, 4, 5 candles, and by 10:30 you are done. And once the candle closes inside the band, you're going to get out. That's your trade done. And rest, it still goes down. See, this part goes down. I'm okay to lose that money. I'm not willing to take all the money. I just want the high volatility. I just want the walk of the band. Rest goes to other people. You need to be generous to other people. Let other people make money. Okay. So this is very important. I just shared one of the best strategies. The stock which gets volatile in the last 45 minutes, which is volatility means starts walking on the band up or down. That means that is the stock you need to enter based on the first candle of walk, which we call as the alert candle. After alert candle, you enter and then you stay till the end of the market. If the last candle of 15 minutes is also walking on the band and the market closes right at the bottom, you can carry forward that as a BTST trade. You will remember thumb rule of the market. If you're doing BTST, you should only carry forward profitable trades. Let's say you bought at 100, it closed at 105, then I do BTST. If you bought at 100, it closed at 98, I'll cut off. Not to carry overnight trades in losing position. Let's look at some more charts today. That's the one. Is a 15-minute chart of CESC. And then the green arrow, which is marked here, is the first alert candle. Now, here it started the day, and all the way it happened around it. If you see, notice you can't see the price, this thing properly, but it actually happened around 2:30. If you see, there's 14:25, and that ended the day here somewhere. And next day, it opened another 5 candles up. So it not only becomes a good day trade, but it also becomes a good BTST trade, which goes into that 7 to 8 candles in your favor, which is very, very good amount of money in the market. So
That's again candlestick, 15-minute chart, walk of the band. Now listen to this. The first 5 candles are walking on the band, and it comes inside. You would be exited, and in fact, then it goes big way up. You miss that part. Absolutely okay, because day trading is a everyday game. This you will get every single day. So don't repent on what you missed. Enjoy on what you got. That's your job. Hey guys, this is Vishal. So now let's start with the third concept, 3x3 swing trader. उसमें कोर कॉन्सेप्ट्स में पहला है प्राइस एक्शन. मेक श्योर अगर ये आप पहला वीडियो देख रहे हो तो इसकी पूरी सीरीज है, प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि 4 प्राइस एक्शन और 4 मोमेंटम पे भी है, और ये अब वॉलेटिलिटी पे हम बात कर रहे हैं. सो 1, 2 एंड 3. सो आज बात करेंगे वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग. वॉलेटिलिटी होता क्या है? इट्स अ साइकिल. मार्केट में 2 तरह के साइकिल होते हैं, एक बुल मार्केट और बेयर मार्केट, मतलब एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड. और दूसरा होता है हाई वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी, मतलब मार्केट बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनाता है, विच वी कॉल एज हाई वॉलेटिलिटी, और कभी कभी छोटे छोटे कैंडल रेंज बाउंड साइडवेज बनाता है, उसको बोलते हैं लो वॉलेटिलिटी. तो वॉलेटिलिटी को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है बॉलिंजर बैंड्स. अब इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे पुट कॉल रेशियो, ऑन बैलेंस वॉल्यूम और ATR, एवरेज टू रेंज. ये सारे इंडिकेटर्स है, बट कोई भी एक को पकड़ के डीप में जाना है, जो है बॉलिंजर बैंड्स की बात करेंगे. अब बॉलिंजर बैंड्स का सबसे बेस जो है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब बेल कर्व. बेल कर्व ये हमने स्कूल कॉलेज में भी सीखा है. अब जिनको नहीं पता है कोई टेंशन नहीं है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ. बेल कर्व मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस बेल कर्व में हुआ है. अब आप बीच में जो डार्क ब्लू है उसको देखोगे तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, -1 एंड प्लस जो 34 + 34 है वो 68%, तो बोलता है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन. सो अगर मैं समझूँ कि जो एग्जाम्पल हर बार मैं लेता हूँ, अगर हम 1000 लोगों की हाइट मेजर करें इंडिया में, तो उनकी हाइट का जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा इंडिया के हिसाब से, अगर 5 और 5.5 फीट के बीच में होगा, 68%. अगर उसको थोड़ा और एक्सटेंड करते 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, सो -2 और -2 मतलब और 26% ऐड कर दे, 13 और 13, तो 95% हो जाएगा. तो 95% लोगों की हाइट 5.5 और 5.6 के बीच में आ जाएगी, राइट. 5'10" हाईएस्ट. एंड देन अगर और थोड़ा एक्सटेंड करें, मतलब -3 स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस 3 स्टैंडर्ड, 99%. तो 4.5 फीट से लेके 6.2 इंच तक सब आ जाएंगे. अब इसके अलावा भी 99 आ गए, लेकिन कुछ एक ऐसा परसेंट होता है ना जो गिनीज वर्ल्ड में है, 6.5 फीट, 6.25 फीट, 60 फीट, वो एक्सेप्शन हो जाता है. तो ये है स्टैंडर्ड. यही सब चीज़, वेट का कैलकुलेशन हो, हाइट का हो, कार का हो, मोबाइल का हो और पैसे का हो, सब जगह पे बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अब बॉलिंजर बैंड में हम यूज़ करते हैं 2 स्टैंडर्ड डिविएशन. अगर आपको ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं है, आगे वाला समझ में आना चाहिए. जहाँ पे हम बॉलिंजर बैंड्स को यूज़ करते हैं, जो है प्लस स्टैंडर्ड 2 प्लस और -2. बीच वाली जो लाइन है, सेंटर बैंड या मिडल बैंड जिसको बोलते हैं, वो है सिंपल 20 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, सिंपल, राइट. मूविंग एवरेज तो सबको पता है, तो सिंपल मूविंग एवरेज है, और उसके ऊपर का +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, -2 स्टैंडर्ड. आपको कुछ भी मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना है. कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप खाली बॉलिंजर बैंड क्लिक करोगे तो अपने आप वो बॉलिंजर बैंड ऐसा ही दिखेगा, राइट. अपर बैंड, लोअर बैंड, सेंटर बैंड, 3 तरह के बैंड्स हैं. अब आप इसके अंदर 3-4 अलग अलग सिग्नल है. अगर आपको इसके ऊपर किताब पढ़नी है तो देयर इज अ बुक कॉल्ड बॉलिंजर ऑन बॉलिंजर बैंड्स बाय जॉन बॉलिंजर, जिन्होंने ये बुक लिखी और जिन्होंने ये टूल बनाया, विच इज़ अ वेरी नाइस बुक. एंड अगर आपको समझना है तो मैं इसमें ज़्यादातर सिग्नल्स अगले 3-4 वीडियो में सब कुछ कवर कर लूँगा, जो आपको सीखना समझना ज़रूरी है, राइट. सो लेट्स लुक एट दिस बॉलिंजर बैंड. एज द फर्स्ट सिग्नल विच वी गेट फ्रॉम बॉलिंजर बैंड इज कॉल्ड स्क्वीज. स्क्वीज मतलब यू लुक एट दिस एज बाय एग्जाम्पल. स्क्वीज मतलब क्या होता है कि जब भी बॉलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी बहुत टाइट होती है, जैसे अभी आप इसको एक्सपैंड करो, आप देख रहे हो कि बैंड एकदम टाइट हो चुका है, जो नीचे का बैंड है और ऊपर का बैंड है, मतलब उसको ऐसे स्प्रिंग को दबा के रखा है, और अगर स्प्रिंग को दबा के बाद में छोड़ते तो कैसे एक्सपैंड करता है, देन यू सी दैट ये एक्सपैंड हो गया. सो ये वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हो गया. तो आप देखोगे कि नीचे का बैंड नीचे जा रहा है, ऊपर का बैंड ऊपर जा रहा है, विच वी कॉल ऐसे मगरमच्छ का मुंह खुलता है. सो दैट्स कॉल्ड स्क्वीज एक्सपेंशन और वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन. दैट्स व्हेन वी बाय. अब आप देखोगे कि दूसरा स्क्वीज भी है यहाँ पे, राइट, एंड वापस मगरमच्छ का मुंह खुलता है. दैट्स सो ये एक ही चार्ट में आपको 2 साइकिल मिले, जहां पे लो वॉलेटिलिटी, फिर हाई वॉलेटिलिटी, फिर लो वॉलेटिलिटी, फिर हाई वॉलेटिलिटी. सो साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4. अब इसके साथ RSI कंबाइन कर सकते हो, जो आपने पहले वीडियोस में सीखा, बट अभी हम फिलहाल बॉलिंजर बैंड पे ही फोकस करेंगे, ताकि स्क्वीज और बॉलिंजर बैंड का पता चले कैसे यूज करना है, राइट. नाउ लुक एट दिस वन.
यहाँ पे भी बहुत टाइट स्क्वीज है, और उसके बाद जब खुलता है तो ये जो बैंड कैंडल है ना, सारे कैंडल्स बैंड के बाहर चले जाते हैं. इफ यू सी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9. ये 9 कैंडल बैंड के बाहर बंद आए. उसके बाद वाला जो रेड है वो बैंड के अंदर बंद आया. तो जब बैंड के बाहर जाता है मतलब वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से बाहर जा रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है. जब भी बैंड के बाहर होता है मतलब हाई वॉलेटिलिटी है, जब भी बैंड के अंदर है मतलब वॉलेटिलिटी अभी कम हो रही है, राइट. अब लोग ज्यादातर वॉलेटिलिटी से डरते हैं, बोलते हैं कभी भी लॉस होता है ना तो क्या आंसर मिलता है, सर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है. वॉलेटिलिटी इज योर फ्रेंड. अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं होगा तो आप पैसा कैसे बनाओगे? अगर साइडवेज स्क्वीज ही चलता रहा जिंदगी भर तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. तो एक्सपांड तो होना चाहिए, बट हमको अगर सही टूल्स और टेक्निक्स पता है तो कौन से डायरेक्शन में एक्सपांड हो रहा है उस हिसाब से हमको पोजीशन लेना है. अब ऊपर का बैंड खुल रहा है तो ऊपर के साइड वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो मेरे को बाय करना है. अगर मैं खाली इसी सिस्टम को यूज करूं, ये सिस्टम नहीं है बट जनरली अगर मैं इसको सिस्टम को यूज करूं, सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन, जिस टाइम पे वो कैंडल बाहर बंद आता है स्क्वीज के बाद, पहला कैंडल, वो मेरा पहला कैंडल हो गया अलर्ट. उसके बाद मैं दूसरे कैंडल पे अगर मैं बाय करता हूं और बस खाली होल्ड करता हूं जब तक कैंडल बाहर बंद आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं करना है, तो मेरा यहां से बाय बनेगा और सीधा यहां पे एग्जिट होगा लाल कैंडल पे, क्योंकि वो बैंड के अंदर आ गया. सो ये डेली चार्ट है. 8 दिन तक मेरी पोजीशन खड़ी रही और ये ऑलमोस्ट 10 से 15% ऊपर चला गया. तो मेरा एक, अगर मैं फ्यूचर में काम करता हूं तो इट बिकम्स 1 6 फिगर ट्रेड. 6 फिगर मतलब एक ट्रेड में 1 लाख. चलो समझो कैश में भी करते हैं, 100 शेयर्स का काम किया, 100 शेयर भी खरीदे तो भी ये 500 रुपए का मुंह पकड़ में आता है. सो ऐसे ट्रेड स्क्वीज, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन. अब ये डेली चार्ट है, वैसे आवरली भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी होता है. तो जो भी मैं सिखा रहा हूं इस सीरीज में वो सारी की सारी चीजें हर एक टाइम फ्रेम के चार्ट पे लागू होती है. तो अगर आप इंट्राडे करते हो, डेली करते हो, शॉर्ट टर्म करते हो, जो भी करते हो सब में लागू होगा. स्कैल्पिंग, जॉबिंग करते हो तो 1 मिनट के चार्ट पे भी होगा. अब मेरा सवाल है कि चलो 1 मिनट पे भी चलता है और 1 दिन पे भी चलता है, तो 1 मिनट क्यों करेंगे? 1 मिनट में ज्यादा पैसा बनेगा या 1 दिन में ज्यादा बनेगा? मतलब डेली चार्ट पे ज्यादा बनेगा या 15 मिनट पे ज्यादा बनेगा? ऑफकोर्स डेली पे बनेगा. फिर भी लोग 5 मिनट पे और 1 मिनट पे करते हैं, क्यों? दैट्स मोर ऑफ एन एडिक्शन, दैट्स मोर ऑफ गिव्स यू अ किक, कि आपको एक स्टिमुलेशन मिलता है कि जैसे वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग से मिलता है. बट यहाँ पे अगर आपको पता है कि मैं 1 दिन खड़ा रह के अगले 10 दिन तक रुक सकता हूँ और मैं अपना जॉब भी करूँ, बिजनेस भी करूँ, काम भी कर सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे पैसा बना सकता हूँ, विच वी कॉल एज पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम, देन व्हाई नॉट? तो मैं क्यों स्क्रीन के सामने बैठूं? क्यों मैं अपना दिमाग खराब करूं? क्यों मैं बाकी सब काम छोड़ दूं और खाली फोकस ट्रेडिंग पे करूं when I can make parallel income out of it? So learn this lesson. मैं आपको 2 कोट देता हूं अभी, ध्यान में रखो. One is longer the squeeze, stronger the move. मतलब जितना टाइट स्प्रिंग को दबा के रखा, जितना लंबा चला उतना बड़ा मूव ब्रेकआउट होगा. अब वो डेली पे हो, वीकली पे हो, 5 मिनट पे हो, वो आपको चूज करना है आपका कौन सा टाइम फ्रेम. एंड दूसरा मैं आपको कोट बताता हूं जो शायद ही कोई बताएगा. योर प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, your profits are indirectly proportional to the screen time. जितना कम स्क्रीन टाइम दोगे स्क्रीन के सामने उतना प्रॉफिट बड़ा होगा. जितना स्क्रीन के सामने बैठोगे और 5-5 मिनट का कैंडल देखोगे उतना प्रॉफिट कम होगा लॉन्ग टर्म में, राइट. सो दैट्स 2 थिंग्स. लॉन्गर द स्क्वीज, स्ट्रॉन्गर द मूव, and your profits are inversely proportional to the screen time you have on your terminal, right? So let's go back on this. Now look at this. यहाँ पे कितना बड़ा स्क्वीज है, बहुत बड़ा स्क्वीज है, राइट. और ये मैंने आवरली चार्ट लगाया, देखो. तो अगले 6-7 घंटे मतलब अगले 2 दिन तक वो स्क्वीज ब्रेकआउट होके नॉन स्टॉप चला ऊपर की तरफ. यू कैन सी दैट कुड हैव बीन अ गुड BTST ट्रेड, राइट. देन खाली अगर वॉलेटिलिटी से ट्रेड करते तो एक ट्रेड ये हो गया, दूसरा ट्रेड इधर होगा स्क्वीज ओपन, और तीसरा ट्रेड इधर होगा. लेकिन जब मैं RSI और बॉलिंजर बैंड दोनों को कंफर्म करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, तो मेरा एक ही ट्रेड जो यहां से शुरू हुआ वो चलेगा ऑल द वे टिल इट ब्रेक्स द RSI 60. सो वो हम ऑफकोर्स एडवांस कोर्स या एडवांस प्रोग्राम में करेंगे कैसे दोनों को जोड़ना है. बट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सब फ्री में सीखने को मिल रहा है, विच आई थिंक इज ग्रेट. और जैसे मैंने बताया कि आप इसको जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा. नाउ लेट्स गो बैक एंड सी वन मोर स्क्वीज ब्रेकआउट.
सीधा सीधा मॉर्निंग में गैप अप खुल के स्क्वीज ब्रेकआउट हो गया, तो उस दिन का काम हो गया। फिर वापस दूसरे यहाँ पे दूसरा स्क्वीज यहाँ पे है, यू कैन सी, और दोनों टाइम पे स्क्वीज ब्रेकआउट भी हो रहा है और RSI 60 भी क्रॉस हो रहा है, नीचे दोनों एरो दिख रहे हैं। सो नाउ आई एम कंबाइनिंग RSI ऑल्सो, सो दैट मोमेंटम प्लस वॉलेटिलिटी, 2 डायमेंशनल ट्रेड प्लस प्राइस एक्शन, 3D, 3x3 सीरीज इसलिए बोलते हैं, प्राइस, मोमेंटम एंड वॉलेटिलिटी। नाउ लुक एट दिस वन, कितना प्राइस भी कितना साइडवेज था, देखो 40-60 नीचे चल रहा है RSI पे, और 40-60 के नीचे, 40 के ऊपर नहीं, 40 के नीचे नहीं जा रहा है, 60 के ऊपर नहीं जा रहा है। और जैसे ही उसने 60 क्रॉस किया, बॉलिंजर बैंड को टैग किया, मतलब वॉकिंग, ये जो बैंड के बाहर जाता है ना, इसको बोलते हैं वॉकिंग ऑन द बैंड्स और टैगिंग द बैंड। सो बैंड का टैगिंग चल रहा है तो मैं प्राइस को, मैं भाव को, मतलब पोजीशन को पकड़ के रखूंगा। जैसे टैगिंग छोड़ देगा, मैं पोजीशन को हल्का कर दूंगा, एंड देन वापस टैगिंग करेगा तो वापस एंट्री करूंगा। और यू कैन यूज बोथ ऑफ देम टुगेदर, लाइक RSI एंड मोमेंटम, RSI एंड बॉलिंजर बैंड टुगेदर टू मेक वन सिंगल ट्रेड ओनली, विच कुड बी अ लॉन्गर एंड अ बिगर ट्रेड। नाउ आई कैन शो यू एज मेनी चार्ट्स एज यू वांट, बट आपका खाली काम कब होगा, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन, 1 and 2। ना इसी तरह से नीचे भी स्क्वीज खुलता है, नीचे स्क्वीज खुलेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑन द डाउन साइड। अब वॉलेटिलिटी नीचे की तरफ एक्सपांड हो रही है, तो अब अगर आप कैश में तो शॉर्ट नहीं कर सकते हो, इंट्राडे में कर सकते हो, लेकिन ओवरनाइट नहीं कर सकते हो। ओवरनाइट के लिए आपको फ्यूचर ही करना पड़ेगा या आपको पुट खरीदना पड़ेगा। सो यू कैन डू एट योर ओन रिस्क। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैन बी रिस्की, यू नीड टू हैव इनफ कैपिटल टू डू इट। बट पहले समझो, पहले टेस्ट मैच खेलो, मतलब पहले कैश में खेलो, कैश में ट्रेड करो, उसके बाद धीरे धीरे करके फ्यूचर। बट समझना जरूरी है, जब समझो कि आपकी कोई पोजीशन खड़ी है लॉन्ग में, और जैसे ये नीचे की तरफ स्क्वीज खुलता है तो एटलीस्ट आप एग्जिट तो कर सकते हो अपना लॉन्ग। उसके बाद देखो क्या हालत हुआ इसका, वॉकिंग ऑन द बैंड्स, और उसी टाइम पे उसने 40 भी ब्रेक किया। सो दिस इज डाउनवर्ड स्क्वीज ब्रेकआउट। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, दो जगह पे है, एक वहां पे जहाँ पे डाउनवर्ड स्क्वीज ब्रेक, और दूसरा जहाँ पे एरो मार्क किया, दैट्स अनदर वन, राइट। एंड इफ यू सी दैट देयर इज अ रेंज शिफ्ट ऑल्सो, और वो सारे कॉम्बिनेशन तो आप फिर से कर ही सकते हो, विच इज अ रेंज शिफ्ट। अगर आपने रेंज शिफ्ट नहीं सीखा है तो इसके पिछले वाले वीडियोस देख लो। ये 12 वीडियोस आपको कंप्लीट करने हैं 4 बार 5 बार, और नीचे नोट्स और उसके नोट्स बनाने, उसके स्नैपशॉट्स लेने। उसके बाद मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कि आपको कोई और टेक्निकल कोर्स या टेक्निकल टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ट्रेनिंग करते, हम लोग इतने प्रोग्राम्स करते, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसमें भी ये 3-4 टूल के अलावा कुछ नहीं है। पर इसी के अंदर डीप में जाते और फिर माइंडसेट पे काम करते कि जब ऐसा हो तब बटन दबना चाहिए। दिखता तो सबको है और दिखाते सब है, लेकिन जब हो रहा है तब कौन कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन और द स्ट्रैटेजी सब यूट्यूब पे फ्री है, सबका फ्री है। बट जब माइंडसेट की बात आती है तो उसके ऊपर कितना भी काम करो कम है, क्योंकि वो काम ऑन गोइंग रहेगा, राइट। सो आवली चार्ट पे देख रहे हो, डाउनवर्ड स्क्वीज नीचे की तरफ, यू कैन सी दैट ओपनिंग द स्क्वीज ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ऊपर के स्क्वीज भी है, देखो यहाँ पे 3-4 कैंडल 3-4 दिन में खत्म हो गए, 1 and 2। एंड कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपको ट्रैप कर लेगा, तो गलत ट्रेड भी होते हैं, तो सीधा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, राइट। बट आपको यही देखना है कि आपका जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो छोटा हो और प्रॉफिट हो तो बड़ा हो, राइट। दिस आर द डाउनवर्ड स्क्वीज ब्रेकआउट, राइट। वन मोर डाउनवर्ड, 2 ऑफ देम। एक 2-3 दिन में ही, 2-3 घंटे में हो गया, दूसरा 6-7 घंटे तक चला, मतलब 2-3 दिन तक चला। सो दैट्स योर डाउनवर्ड स्क्वीज ब्रेकआउट ऑन डेली ऑल्सो। अगर मैंने एक शॉर्ट किया तो पहले दिन पे शॉर्ट किया 1, then 2, then 3, then 4, then 5, और छठे दिन में इसको स्क्वायर अप कर दूंगा। दिस बिकम्स माई सिस्टम, दिस इज माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बस इसमें और कुछ देखना ही नहीं है, दिस इज मोर देन इनफ। So what we learned today is very, very powerful. Bollinger Band का पहला concept सीखा, which is squeeze breakout and walk off the bands. Hey guys, this is Vishal. आज हम और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस। आपने RSI डाइवर्जेंस देखा कि जब RSI ऊपर नीचे जो हाई लो को कंपेयर करते हैं उससे मोमेंटम डाइवर्जेंस होता है, वैसे वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी होता है। और वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा आज के वीडियो में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ 3x3 स्विंग ट्रेडर एंड वी स्टार्ट विथ कोर कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी में बॉलिंजर बैंड्स का दूसरा जो वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस है उसका नाम है आउटसाइड इनसाइड। आउटसाइड इनसाइड मतलब क्या, एक बाहर एक अंदर, राइट। अब ये कैसा दिखता है
बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मेरा फेवरेट है। मतलब जब मैं पहले पहले बॉलिंजर बैंड्स समझता था तो हमेशा मैं यही ढूंढता हूँ, आउटसाइड इनसाइड किधर है, आउटसाइड इनसाइड किधर है। और अभी भी रिसेंटली मैंने एक मास्टर क्लास भी किया था, उसमें मैंने बताया था फाइंड द बॉटम। फाइंड द बॉटम के जो मास्टर क्लास किया था, जिसमें बहुत सारे क्रैशेस जितने भी हुए 2000 से लेके 2025 तक, उसके अंदर जितने भी बॉटम बने ना, ज्यादातर बॉटम में आउटसाइड इनसाइड बना है। मतलब ये सिग्नल बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और बेस्ट चीज बताओ, ये आपको 5 मिनट के चार्ट से लेके मंथली चार्ट तक देखने को मिलेगा। सो सारे चार्ट्स पे लागू होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इट लुक्स लाइक दिस। एक जो टॉप बॉटम है वो बैंड के बाहर जा रहा है, मतलब आपने देखा था वॉकिंग ऑन द बैंड्स, विच इज टैगिंग द बैंड्स, मतलब वॉलेटिलिटी एकदम हाई है। फिर थोड़ा ऊपर जाता है, मूविंग एवरेज तक जाता है, और फिर दूसरा बॉटम बनाता है, एंड वी कैन सी दैट इनसाइड। अब इस बार वो बॉलिंजर बैंड को टच नहीं कर रहा है। अब भाव देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक बैंड के बाहर है, एक बैंड के अंदर है। दैट्स कॉल्ड आउटसाइड इनसाइड, डबल बॉटम, वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस, जो भी आप बताओ। तो मेरे लिए ये सिग्नल है कि ये जो दूसरा बॉटम बना, अगर वो अंदर बना, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यू टर्न मारने के पहले स्पीड को कम कर रहा है, वॉलेटिलिटी को कम कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर में मोमेंटम था, जैसे अगर तेजी से जा रहा है, फिर स्लो डाउन करेगा, फिर टर्न मारेगा, दैट इज कॉल्ड आरएसआई डाइवर्जेंस। वैसे वॉलेटिलिटी बहुत तेजी से नीचे जा रहा था, अब तेजी से नीचे जाएगा तो वी शेप रिकवरी बहुत रेयरली होता है, लेकिन अगर उसको यू शेप करना है तो थोड़ा ऊपर आके वापस एक बॉटम को रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। दैट्स कॉल्ड आउटसाइड इनसाइड। सो ये ऑफ कोर्स दोनों साइड होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। आउटसाइड इनसाइड ऑन द टॉप, आउटसाइड इनसाइड ऑन द बॉटम। लेट्स स्टार्ट विद द बॉटम। वी हैव अ सिग्नल, वहां से जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है वैसे ही हम यहाँ पे बाय करेंगे, एंड देन वी रीच दैट टारगेट विच इज एट द प्रीवियस जो स्विंग हाई है। अब ये प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न है। अब डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म होने के बाद इसको और एक बार ट्रेड कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। सो नीचे जब बाय करते हैं उसको बोलते हैं सपोर्ट ट्रेडिंग, ऊपर जब ब्रेकआउट पे बाय करते हैं दैट्स ऑल ब्रेकआउट ट्रेडिंग। सो नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। नाउ लुक एट दिस वेयर यू हैव सीज आउटसाइड इनसाइड, जहां पे मार्किंग की गई है। सो लेट्स पुट इट फुल स्क्रीन। यू कैन सी दैट दोनों बॉटम में फर्क क्या है, एक बैंड के बाहर है, एक बैंड के अंदर है। मतलब वॉलेटिलिटी पहले वाले बॉटम पे वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, इसलिए वो बॉलिंजर बैंड के बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि बैंड इज व्हाट, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो 95% डेटा उसके बाहर जाता है, विच इज कॉल्ड द वॉलेटिलिटी बैंड्स। और दूसरा वाला है अंदर है, मतलब इस बार वॉलेटिलिटी कम है, इसलिए ये आउटसाइड इनसाइड हो रहा है। राइट, लेट्स लुक एट मोर एग्जांपल्स। लुक एट दिस वन, आउटसाइड इनसाइड, परफेक्ट वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस। अब देखो मार्केट अच्छा एक डाउन ट्रेंड में था पहले से, और उसने बॉटम, उसको यू टर्न मारना था, तो नीचे उसने वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस दिखाया और फिर यू टर्न मार के ऊपर गया। तो आपको बहुत सारे मौके, बहुत सारा सिग्नल मिला। अब इसी टाइम पे शायद वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस भी हो सकता है, इसी टाइम पे प्राइस सपोर्ट पे तो है ही, इसी टाइम पे शायद वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी हो सकता है। हमने वॉल्यूम की बात ज़्यादा नहीं की है। मे बी इफ यू गिव लव टू ऑल दिस एपिसोड्स, वी मे डू अ स्पेशल वॉल्यूम सीरीज ऑल्सो, so that you learn all types of divergences. So this was a perfect example. Let's look at one more, outside and inside. 2 बार inside बनाया और धीरे धीरे करके यू टर्न मार के ऊपर गया। आउटसाइड एंड इनसाइड, परफेक्ट। ये ऐसा आपको बहुत बार, अभी आप जैसे ही चार्ट देखना शुरू करोगे ना, आपको बहुत जगह पे ये देखने को मिलेगा। सो दिस वाज अ बॉटम। अब हमेशा याद रखो, जब ऐसा कोई बॉटम बनता है ना, तो बहुत घाई नहीं करनी चाहिए बाय करने में, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर जाके जब इनसाइड बनाने को आएगा तब उस पे प्रॉपर लो रिस्क आइडिया बनेगा। राइट, अगर यहां से सीधा ऊपर जाएगा पहले वाले से, तो चांसेस है कि आप फंस सकते हो, क्योंकि वो रीटेस्ट करने को आ सकता है, जैसे इसने भी रीटेस्ट किया, और कभी कभी रीटेस्ट पहले वाले से थोड़ा नीचे भी हो सकता है। राइट, यहां पे भी आप देख रहे हो आउटसाइड इनसाइड। राइट, अब जैसे ही आप चार्ट देखना शुरू करोगे ना, आप सब जगह पे आउटसाइड इनसाइड दिखने लगेगा। देखो ऊपर ऑलरेडी दिख रहा है आउटसाइड इनसाइड। मैंने अभी तक सेल वाला दिखाया नहीं है, बट जैसे एक बार नजर तेज हो जाती है, वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, आउटसाइड इनसाइड। सो यू सी दिस इज वेरी कॉमन पैटर्न, मतलब बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा दिखती है। राइट, लुक एट दिस, परफेक्ट, आउटसाइड इनसाइड, एंड देन slowly like a U-turn from the uptrend. Now this is what, very simple, outside and inside. अब ये देखो कि इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब ये नीचे गया, 1-2 कैंडल ऊपर आया, फिर से नीचे आ गया। अब इसके पहले वाला था ना, वो नीचे से सीधा मूविंग एवरेज तक काफी ऊपर तक गया, फिर नीचे आया। तो ये थोड़े थोड़े अलग अलग वेरिएशंस को स्टडी करना पड़ेगा, हर बार एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा। अब जैसे मैंने बताया कि आपको आउटसाइड इनसाइड सब जगह पे दिखने लगेगा। यू कैन सी ऑन द टॉप ऑल्सो,
look at that, outside inside, उसके बाद एक अच्छा सा decline, and you can see one more outside inside, and that was nice, like a decline after that also. So that's how works. One more outside inside on the same chart is here when you see outside and inside, right? So एक ही चार्ट में 1 2 3 4 पैटर्न्स मिल रहे हैं आपको. Look at that. Then we saw that perfect outside inside again. 2 बार एक ही चार्ट पे again दिख रहा है आपको. So this is so simple. This is called volatility divergence, right? Volatility divergence शायद आपने पहले ना भी सुना भी हो, बट अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा सिग्नल्स मिलेगा ट्रेड करने के लिए. यहाँ पे भी एक आउटसाइड इनसाइड है जो तीसरा बन जाता है, राइट? सो हमेशा मार्केट को जब यू टर्न मारना होता है तो पहले वो स्पीड को कम करेगा, फिर वॉलेटिलिटी को कम करेगा, फिर पैटर्न्स दिखाएगा. मतलब मार्केट को हमको प्रेडिक्ट नहीं करना, अरे ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. हमको मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट को समझना है, मार्केट को सुनना है, बताना नहीं है, राइट? तो ये देखिए हमने बाय वाले एग्जाम्पल. अभी उसी तरह से सेल वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे सेल में क्या होगा, एक टॉप के बाहर जाएगा, बैंड के बाहर फट के जाएगा ऊपर, और दूसरा आएगा उसके बाजू में टॉप बनाएगा इनसाइड. टच भी हो जाता है तो चलता है, लेकिन एक तो क्लियरली आउट है और एक थोड़ा सा टच कर रहा है, शैडो टच कर रहा है, दैट्स ओके. सो दैट्स योर आउटसाइड इनसाइड टॉप, एंड देन वी हैव अ कंफर्मेशन, दैट्स योर फर्स्ट शॉट, and then we have a second confirmation, that's your second shot, because M pattern confirm हो गया. नीचे W था, ऊपर M मिलेगा, so that's your M pattern. And now we have clear examples. Let's go back and see outside inside. Can you see that? Very simple double top. अब ये जो second वाला एरो है ना, वहां पे आपको high probability trade मिलता है. High probability, low risk और confirmation ज्यादा. Volatility का divergence है यहाँ पे भी. Look at this. ऑलमोस्ट डबल टॉप देखने को मिल रहा है, सेम लेवल पे आ रहा है, लेकिन बैंड की हालत या बैंड का जो सिचुएशन है वो अलग है. पहले वाले में बैंड के बाहर जा रहा है, 3-4 कैंडल बाहर है, देखो पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल सब बाहर है इसके, राइट? बट दूसरे वाले में उसी भाव पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो भाव तो वही है, राइट? बट बैंड का सिचुएशन अलग है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस. एंड देन ऑफ कोर्स कैंडल पैटर्न तो है, मैंने कैंडल्स पे भी वीडियो बनाया है. डार्क क्लाउड कवर है, कंफर्मेशन मिलेगा, ट्रेड करो. सेम अब यहाँ पे देखो, एक और फिर दूसरा भी आउट है, फिर तीसरा इनसाइड है, तो 3 हो गए. अब मुझे अगर आप मैं देखने RSI है नहीं यहाँ पे, बट मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इसमें नीचे RSI में भी डाइवर्जेंस होगा. सो आपके पास डाइवर्जेंस है, रेंज शिफ्ट है, प्लस आपके पास वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस है, प्लस कैंडलस्टिक कंफर्मेशन है, दैट्स योर सेल सिग्नल, राइट? नेक्स्ट आउटसाइड इनसाइड. अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है. क्या अलग है कि दूसरा वाला टॉप थोड़ा सा ऊपर है, राइट? थोड़ा सा ऊपर है, बट वो फिर भी इनसाइड है. पहला वाला टॉप आउटसाइड है, दूसरा इनसाइड. And if you see that after that it fell down and it came and it made outside and then it made again inside. यहाँ पे भी दूसरा वाला टॉप थोड़ा सा नीचे है, so that is also possible. So इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको 7-8 चार्ट 10 चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन आपको कम से कम 100 चार्ट पे ये प्रैक्टिस करना होगा. अलग अलग तरह के वेरिएशंस, छोटे छोटे नगेट्स देखने को मिलेंगे, राइट? सो मेक श्योर यू फुल प्रैक्टिस करो इसको, ताकि आप आसानी से इसको समझ सको. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही पावरफुल है, राइट? आउटसाइड इनसाइड, पहला टॉप आउट, बैंड के बाहर, स्क्वीज ब्रेकआउट. दूसरा टॉप धीरे धीरे करके बैंड उसी टॉप पे, उससे थोड़ा ऊपर भी है एक्चुअली, और बट वो अंदर है. उसका मतलब क्या कि वॉलेटिलिटी कम हो गई है और अब वो यू टर्न मारेगा. एंड देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड. कैन यू सी दैट? राइट, सो दैट्स वन मोर एग्जांपल ऑफ आउटसाइड इनसाइड. वेरी वेरी सिंपल. आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस. कैसा लगा आपको नीचे कमेंट्स में बताएं. मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग. बॉलिंजर बैंड, स्क्वीज ब्रेकआउट एंड बैंड वॉक. ये देखो, पहले देख लेते हैं कि समझ लेते हैं कि वॉक किसको बोलते हैं. जब प्राइस बैंड के ऊपर चलता है उसको वॉक बोलते हैं. वॉकिंग द बैंड्स, टैगिंग द बैंड्स और वॉकिंग द बैंड्स. जैसे यहाँ पे वॉक है, यहाँ पे भी एक वॉक है, ये वॉक. ऐसा ट्रेड मिलना चाहिए, और मिलने के लिए क्या क्या ढूंढना पड़ेगा देखते हैं. ये भी वॉक है, ये वीकली चार्ट पे वॉक है, जोर से मार्केट गिरेगा. ये डेली चार्ट पे वॉक है, एक वॉक, 2 वॉक. ये जो टाइटनेस है मार्केट का, जो एकदम बैंड टाइट हो जाता है, वो होता है स्क्वीज. और उसके बाद जब वॉक होता है, वो एक सबसे बढ़िया ट्रेड बन सकता है. वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स यू कैन डू इज
walking the bands after squeeze, not before squeeze or not without squeeze, right? So let's now understand the walk part of it. ठीक है? ये शॉर्ट वाला ट्रेड लेते हैं. देखो, this one. दिस इज साइडवेज मार्केट, और साइडवेज यहां से भी पता चलता है 40-60 है, यहां से भी पता चलता है बैंड वॉक. ये देखो एक पहला सा बैंड वॉक हुआ यहाँ पे, लोअर बैंड पे स्क्वीज नीचे खुला. फिर ये दूसरा हुआ, पहले वाले पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा. क्यों? क्योंकि तब आरएसआई देखो 40.71 है, यहाँ पे जो बॉक्स है ना वहां पे दिखेगा. जो अभी आप देखो आरएसआई पे कितना है, 40.71. दूसरा जब कैंडल आएगा तो आरएसआई हो गया 36.39. तो मैं तभी उसके नीचे ट्रेड करूंगा, और वो हो जाएगा अलर्ट कैंडल. अलर्ट कैंडल का हाई हो जाएगा स्टॉप लॉस. तो एक कैंडल का स्टॉप लॉस, और मुझे जब तक वो वॉक करते जा रहा है उसको होल्ड करना है. जैसे ही अंदर कैंडल बनेगा ये वाला, तभी मुझे एग्जिट करना है इसके ऊपर. तो ये जो मेन पार्ट है, दैट इज योर प्रॉफिट. नाउ लुक एट द होल थिंग. आई ऑलवेज टेल दिस पीपल दैट डोंट ट्राई टू सेल हियर एंड बाय हियर. हमने सेल कहां पे किया? यहाँ पे, तो इतना पार्ट मिस हो गया. हमने बाय कहां पे किया? यहाँ पे, तो ये नीचे का पार्ट मिस हो गया. बट बीच में जो मिला, दिस पार्ट, that is called the cream of the market. That's what we need to focus on, rather than focusing on all the other stuff, rather than selling at the top and selling at the bottom. Predicting नहीं करना है. हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर रहे मार्केट को, और प्रिडिक्ट करना जरूरी नहीं है मार्केट में. खाली मार्केट को फॉलो करना है. मार्केट ने बोला मैं नीचे जा रहा हूं, तो मैंने सुना. मार्केट ने बोला मैं वॉलेटिलिटी एक्सपांड कर रहा हूं, तो मैं बोला ठीक है सेल करते हैं. मार्केट ने बोला कि आरएसआई भी 40 के नीचे है, तो मोमेंटम भी बेरिश है, तो मैं और क्वांटिटी बेचूंगा क्योंकि ये 5 स्टार ट्रेड हो गया. और फिर मैं चेक करूंगा कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम इतना कुछ खास नहीं है, तो मैं कम क्वांटिटी करूंगा. डाउनवर्ड मार्केट में वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूरी नहीं है, अपवर्ड के लिए कंफर्मेशन जरूरी है, क्योंकि डाउनवर्ड मार्केट तो बिना वॉल्यूम के गिर सकता है, बट बिना वॉल्यूम के ऊपर नहीं जा सकता है. तो मैं इसको 7 स्टार ट्रेड लूंगा. और ये जब लास्ट ट्रेड हो जाता है, लास्ट ब्लैक कैंडल पे इतना बड़ा वॉल्यूम हो जाता है, तो मुझे समझ में आता है कि ये एग्जॉशन वॉल्यूम है. एग्जॉशन वॉल्यूम है मतलब ये अभी नीचे खत्म होने वाला है. And then it is going to show me an inside candle with a spinning top, so that let's cover the position. All this thinking has to happen before you take a trade. Thank you so much for watching this Bollinger Band course. I hope you enjoyed it, learned it. मुझे कमेंट्स में बताओ क्या क्या सीखा, और अपने एक ट्रेडर फ्रेंड से इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी सीखे कि वॉलेटिलिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर मार्केट में अच्छे से ट्रेड करना है. तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.